السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وقال فی موضع آخر قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ حاضرین مجلس، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم انسانوں کی زندگی میں موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انسان منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا دنیا کے سرکشوں نے انکار کیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کر سکا۔ موت کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عام طور پہ مسلمان ان چیزوں سے غافل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم موت کی تعریف پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں بہت واضح طور پہ اعلان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہ معلوم یہ ہوا کہ موت مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت سارے مخلوقات ہیں، انسان مخلوق ہے، جن مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ہوا مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں موت بھی ایک عظیم مخلوق ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ دنیا میں نہیں کر سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے کہ ہاتھ سے چھو لیں، اس کو ٹچ کر لیں تو پتہ چلے کہ ہاں کوئی وجود ہے، کوئی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسے بہت باریک، حساس، حرکت کرنے والی، لطیف مخلوق بنایا ہے، جو انسان کے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جیسے خون سرایت کی ہمارے جسم میں، ہوا ہمارے جسم میں سرایت کی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ایسے موت بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم سے اس کو منسلک کر رکھا ہے۔ اس موت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ موت سے انسان کو جائے فرار نہیں ہے۔ حالات بہت کشیدہ ہو جائیں، ان حالات سے پریشان ہو کر انسان سوچے میں یہاں سے بھاگ کر کے موت سے بچ جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے جس انسان کی موت مقدر کیا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین وہاں پہنچا دے گا، اس کا بہانہ جو بھی ہو، سبب جو بھی ہو۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں کہا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی رہو، موت تمہیں پہنچ کر رہے گی، اگرچہ تم لوگ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو۔ انسان اپنے وسائل کو استعمال کر کے موت سے بچنے کے لیے بہت محفوظ جگہ کا انتخاب کر لے تو ایسا نہیں کہ موت اس کو وہاں نہیں پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس کی موت کو وہاں مقدر کیا ہے تو یہ مضبوط قلعے، دنیاوی وسائل انسان کو محفوظ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر انسان کی موت مقدر نہیں ہے تو میدان کارزار میں دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے، جس میں زخموں سے چھلنی ہو جائے، لیکن اگر موت مقدر نہیں ہے تو انسان کی موت وہاں نہیں آتی ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے پڑوس میں، گاؤں میں، شہر میں بہت سارے مریض بیماریوں سے جوجھتے ہیں، ایک دو مہینے نہیں، سالوں جوجھتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لیکن موت ان کی مقدر نہیں ہوتی ہے تو طرح طرح کی اذیت جھیل کر کے بھی وہ زندہ ہیں۔ اور بہت سے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، توانا ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن موت کا جھٹکا آیا، انسان بستر پر سویا رہ گیا، لوگوں کو اس کی موت کا اندازہ نہیں ہوا۔
گھر سے باہر نکلا، راستے میں گرا، مر گیا، اس کے بارے میں کسی کو شعور نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ موت کا وقت اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، کہاں پر موت آئے گی انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ یہاں پر آپ قرآن کی آیت پہ غور کیجئے، الفاظ پہ، اے نبی کہہ دو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اور پھر اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے تم کو باخبر کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا ہے۔ اب اس موت کے بارے میں احادیث رسول میں کیا باتیں پیش کی گئی ہیں، ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ پہلی حدیث جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فليقل اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي۔ اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان موت کی تمنا نہ کرے، کسی نقصان کے، کسی مصیبت کے، کسی بیماری کے، کسی پریشانی کے آ جانے کی بنیاد پر۔ ہاں اگر انسان اپنی زبان سے کچھ بات کہنا ضروری سمجھتا ہو تو تعلیم یہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کہے اے اللہ رب العالمین جب تک میرے حق میں زندگی مفید ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت مفید ہو جائے تو مجھے موت دے دے۔ لیکن انسان موت کی تمنا نہ کرے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، تھوڑی سی پریشانی آئی، غربت کا سامنا ہوا، کساد بازاری ہوئی، بزنس میں فلاپ ہو گیا، یا بیماریوں میں شفا بظاہر امید نہیں لگتی، تو انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ میرے حق میں موت بہتر تھے، اللہ مجھے پتہ نہیں کیوں موت نہیں دے دیتا، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ اس طرح کی دعا کرنا حدیث کے روح سے ممنوع ہے۔ حدیث میں جو تعلیم اور تربیت دی گئی وہ یہ ہے کہ انسان اگر موت کے بارے میں کچھ کہنا ضروری سمجھے تو اپنی زبان سے کہے اللہ رب العالمین جب تک میری زندگی بہتر مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یہ دعا انسان کو کرنا چاہیے۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہونا، میں اس سلسلے میں تفصیل سے آپ سے بات کرتا۔ بیماریوں کے آنے پر انسان موت کی تمنا کرے یا بیماریوں کو گالی دے، لعن طعن کرے، اعتراض کرے، اس سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو ام سائب کے واقعے سے متعلق ہے یا ابن مسیب کے واقعے سے متعلق ہے، حدیث میں دونوں باتیں ہیں، یا ام سائب یا ام المسیب۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سائب کو دیکھا، ایک عورت خاتون ہے، بخار سے جوجھ رہی تھی، پریشان تھی، اور بخار کی پریشانی کو جھیلنے کے سبب ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو سنا تو آپ نے انہیں کیا حکم دیا، کیا تربیت کیا؟ انہوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا، ما لکی یا ام سائب ترفرفینا، ام سائب تمہیں کیا ہوا، تم کانپ رہی ہو، پریشان دکھ رہی ہو؟ ام سائب نے جواب دیا، اصابنی حمی لا بارک اللہ فیہا یا رسول اللہ، مجھے بخار آ گیا ہے، اللہ رب العالمین بخار میں برکت نہ دے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار آ گیا ہے، اللہ بخار کو مبارک نہ بنائے۔ بظاہر جو سنٹنس اور جملہ ہے اس میں بخار کو کوئی گالی نہیں دی گئی، یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین بخار کو بابرکت نہ بنائے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا خطاب کیا، لا تسبی الحمى، تم حمہ کو یعنی بخار کو گالی مت دو، فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الحریق خبث الحدید او النار خبث الحدید۔ بخار کو تم گالی مت دو، کیونکہ بخار انسان کی غلطیوں کو، گناہوں کو، خطا کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے آگ اور بھٹی کی آگ لوہے کے زنگ کو مٹاتی ہے، ایسے ہی گناہ انسان کے گناہوں کو، خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ
कि इंसान की ज़िंदगी में बीमारी का आना, परेशानी का आना, किसी भी तरह की बीमारी हो, एक मोमिन अगर उस बीमारी पर सब्र करता है, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता है, तो उस बीमारी का आना एक मोमिन के लिए तोहफा है, एक मोमिन के लिए खुशखबरी और बशारत है। एक मोमिन को दो फायदे उससे मिलते हैं। पहला फायदा तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बीमारी के जरिए इंसान की गुनाहों का कफारा करता है, और दूसरा फायदा यह है कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी जन्नत में इंसान के दर्जात को बुलंद करता है। तो ये दो अजीम फायदे हमारी ज़िंदगी में पेश आमदा बीमारियां, परेशानियां, मुसीबत, दुश्मनों का हमला, दुश्मनों का खौफ या माहौल में कशीदगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर हम उन पर सब्र करें, हिकमत से काम लें, तो हमारे लिए दो अहम बशारतें इसमें मौजूद हैं। दुनिया में गुनाहों का कफ़ारा, आखिरत में दर्जात की बुलंदी। तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने जो बात पेश करना चाहता था वो बात यह कि मौत एक अटल हकीकत है, और इस मौत का जो निज़ाम है उस निज़ाम को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस निज़ाम को अपने मजबूत फरिश्तों के ज़रिए इसको अंजाम दिलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किल बिकुम, ऐ नबी तुम कह दो, ऐ इंसानों, तुम्हें मौत से दो चार करने के लिए अल्लाह ने मलकुल मौत को मुकर्रर किया है। गोया फरिश्तों की बहुत सारी टीम है जो अपने अपने अमाल को, अपनी अपनी ड्यूटियों को वक्त के मुताबिक अंजाम देते हैं। अल्लाह ने उन्हें उसी के लिए पैदा किया है, और उनकी दूसरी ड्यूटी, दूसरा काम नहीं है। इंसानों के तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, बेशुमार फरिश्ते हैं, और उन फरिश्तों के वज़ाइफ को, ड्यूटियों को, आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दिया। तो जो फरिश्ता जिस ड्यूटी के लिए पैदा किया गया उसको अंजाम देने पर वो मामूर है। मलकुल मौत ऐसा फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कुरानी आयत में देखा जाए तो 3 मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिस्म से रूह के कब्ज करने के मामले को मंसूब किया है। कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते खुद इस बात को बयान किया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नफ्सों को वफ़ात से दो चार करता है जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है। यानी जब इंसान की मौत का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को मौत से दो चार करता है। यहाँ पर इंसान को मौत से दो चार करना अल्लाह से मंसूब किया गया, क्योंकि वही हुक्म देता है मलकुल मौत को, और ये मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक इंसान के जिस्म से रूह को कब्ज करते हैं। और दूसरी आयत करीमा जिसको मैंने पेश किया आपके सामने, उसमें बराह रास्त मौत को या रूह को कब्ज करने का मामला मलकुल मौत से मंसूब किया गया। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, ऐ नबी कह दो, तुम्हें मौत से दो चार मलकुल मौत करते हैं जो तुम पर सौंप दिए गए हैं। तो मलकुल मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान पर सौंपा है कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है, जागने के आलम में इंसान जाता है, तो ये मलकुल मौत इंसान के सर के पास बैठते हैं और इंसान के रूह कब्ज करते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह आपके सामने सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद के हवाले से इस बात को पेश करूंगा। आप ज़हन में बात को रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी आयत करीमा में इस बात को बयान किया कि फरिश्तों की जमात इंसान को मौत से दो चार करती है। फरिश्तों की जमात की जानिब मौत को मंसूब किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत बराह रास्त इंसान के जिस्म से रूह को निकालते हैं, और जैसे ही मलकुल मौत अपने हाथ में रूह को लेते हैं, मलकुल मौत के पास ताहद्दे निगाह फरिश्तों की जमात और टीम होती है, वो फौरन अपने हाथ में रूह को ले लेते हैं। यहाँ आप जरा ठहरिए, मैं इंशाअल्लाह इस बात को मुकम्मल करूँगा बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मौत दुनिया में हम जिसका मुशाहदा नहीं करते हैं, बहुत बारीक है, बड़ी लतीफ़ जैसे हवा है, बहुत बारीक हर जगह सरायत करती है। हम उसे देखते नहीं लेकिन महसूस करते हैं, पत्तों के हिलने से, कपड़े के हिलने से, फला चीज़ों से, अपने जिस्म के एहसास से हवाओं का हम पता लगाते हैं। ऐसी मौत या रूह बहुत बारीक लतीफ़ चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इस मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जब लोगों का हिसाब व किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौत को जो गैर मरई है,
जिसको हम देख नहीं पाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर करेगा एक खूबसूरत मेढे की शक्ल में। युता बिल मौत अला सूरती कबशिन अमला फयुकफ बैनल जन्नति वन नार व युकाल या अहल जन्नह फयशरबून व या अहल नार फयशरबून सुम्मा युज़बह। मौत को खूबसूरत मेढे की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर करेगा और जन्नत व जहन्नम के माबैन उसको खड़ा कर देगा। जन्नतियों से अल्लाह कहेगा ऐ जन्नतियों, और जहन्नमियों से कहेगा ऐ जहन्नम के लोगों। वो अपने सर को उठाकर देखेंगे अपने ऊपर। फिर मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बह करने का हुक्म देगा, उसे ज़बह कर दिया जाएगा और अल्लाह कहेगा ऐ जन्नतियों हमेशा हमेशा रहो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों हमेशा हमेशा रहो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। मालूम ये हुआ कि ये मौत दुनिया में इंसान को आती है या हयात जो इंसान को मिलती है मौत के ज़रिए ख़त्म होती है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाक़े करने के बाद जन्नत व जहन्नम के दरमियान खूबसूरत मेढे की शक्ल में लाकर हाजिर करेगा और उसे ज़बह कर दिया जाएगा। फिर इंसान को मौत नहीं आएगी। अगर जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है, जहन्नमी नऊज़ुबिल्लाह वो जहन्नमी है। ये बात भी हमें समझने की है, हमारे समझने की है। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया में एक मरने वाला इंसान है और दूसरे मरने वाले इंसान के पास बैठकर उसकी मौत का मुशाहदा करने वाला इंसान है। इन दोनों इंसानों के एहसासात को, जज्बात को अगर आप देखें तो मुझे यकीन है कि आपने किसी इंसान को जागने के आलम में देखा होगा। हमारे बहुत सारे अज़ा मरे, दोस्त अहबाब मरे, उनकी मौत के वक्त हम वहाँ रहते हैं। तो एक इंसान जब जागने के आलम में होता है, मरने के करीब होता है, तो उसका एहसास क्या होता है। इस एहसास को खुद कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया है। कुरान ने अहले किताब के बारे में कहा सूरह बकरा में, वइम मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिन नबी क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। जितने भी अहले किताब हैं यानी यहूद और नसारा, यहूदी और ईसाई, ये तमाम के तमाम लोग अपनी मौत से पहले ईमान ले आते हैं, लेकिन मौत के वक्त इंसान का ईमान मुफीद नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए जो निज़ाम रखा है वो निज़ाम कब, जब इंसान सेहत में हो, आफियत में हो, तवानाई में हो, मौत के अलामात का मुशाहदा ना किया हो, तो इंसान की तौबा कबूल होती है। लेकिन जब इंसान अपनी आंखों से मौत के अलामात का मुशाहदा कर ले, दिल से उनको बखूबी समझ ले, तो ऐसे में इंसान की तौबा, इंसान का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा जो पहले ईमान ना लाया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में सूरह अल इमरान में कहा, वलल्लज़ीन यमूतून वहुम कुफ़ार हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत। जब इंसान की मौत आ जाए तो उस वक्त इंसान की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता है। या इंसान काफिर है, मौत के अलामात को देख ले और कहे मैं ईमान लाता हूँ, तो उसका ईमान उस वक्त मुफीद नहीं होगा। यह आम तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में बयान किया, लेकिन ख़ास तौर पर फ़िरऔन के बारे में आपने बार बार पढ़ा होगा कि जब वो समंदर में डूबने लगा तो उसने फ़ौरन अपनी तौबा और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान का ऐलान किया। तो अल्लाह ने क्या कहा, आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब तुम तौबा करते हो, पहले तुम फसादी थे। यानी मौत की अलामत को जब देख लिया फ़िरऔन डूबने लगा तो अल्लाह पर ईमान का ऐलान किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम यह है कि कोई भी इंसान जब जागने के आलम में दाखिल हो जाए तो उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मौत की अलामत को देख चुका है। अब तौबा के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में इंसान की तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। अगर मैं आपके सामने तफसील पेश करूं इस सिलसिले में, तो शायद आप ये बात जानते हैं और आप पढ़े लिखे लोग हो, लाजमी तौर पे आपका मुताला है। दुनिया के बड़े माहिरीन जिन्होंने साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, फला मैदान में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और हुकूमत मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद मजालिम बिठाए, कत्ल आम किया, इंसानियत का खून बहाया और जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। ऐसे लोग जब मौत के करीब आए, जांकने के आलम में आए, तो उनमें से बाद लोगों ने क्या बयान किया, बाद लोगों ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। आज महसूस करता हूं कि वो लोग मेरे सामने असलहे के साथ खड़े होकर गोया मुझ पर हमला करना चाहते हैं और मैं ऐसी अज़ियत और तकलीफ में हूं जिसको बयान करने के लिए मेरे पास ताबीर नहीं है। और बाद माहिरीन ने, जिनको बड़ी हुकूमत थी, बड़ी ताकत थी, उन्होंने कहा अपने मुआलिज, डॉक्टर, तबीब से कि तुम मेरी सल्तनत का, मेरी दौलत का पूरा हिस्सा ले लो, लेकिन चंद घंटों के लिए मुझे ज़िंदगी दे दो। और ऐसा मुमकिन न हुआ।
तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता था कि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका आना यकीनी है, और उसका निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों में ले रखा है। फरिश्तों के ज़रिए हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत से दो चार करता है, जहाँ न इंसान की रिश्वत काम आएगी, न इंसान की क़ुव्वत काम आएगी, और न इंसान का कोई हरबा वहाँ चलेगा। आइए ज़रा मैं बताऊँ कि इंसान के जिस्म से रूह को निकालने की कैफियत क्या होती है, क्योंकि इस बात का जानना हमारे ईमान में बहुत मुफीद होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रवायत के मुताबिक इस सिलसिले को बयान करते हुए कहा कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो मलकुल मौत उसके सर के पास बैठते हैं। अब इंसान की दो हालतें हैं, या तो इंसान पाकीज़ा रूह रखता है, उसका जिस्म पाक और तय्यब है, अच्छा इंसान है, या बुरा इंसान है, उसकी रूह बुरी है। तो बुरे इंसान की रूह को उसके जिस्म से निकालने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीर के मुताबिक जो अल्फाज हैं कि मलकुल मौत इंसान के सर के पास बैठते हैं, फततफर्रक रूहुहु फी जसदिही, मुजरिम इंसान की, फसादी इंसान की, काफिर इंसान की, शर्री इंसान की रूह उसके पूरे जिस्म में मुतफर्रिक हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है, ताकि जिस्म का हर उज़्व, जिस्म का हर हिस्सा अदियत, तकलीफ, दर्द, कराहत से बेचैन हो जाए। और फिर फरिश्ते जो रूह को खींचते हैं पूरे कुव्वत से, उस रूह के खींचने की जो कैफियत अल्लाह के रसूल ने बयान की, उसमें आपने कहा कि फयंतज़िउ मिन्हु कमा युंतज़उ अस्सफूद मिन अस्सूफिल मबलूल, इंसान के जिस्म से रूह को ऐसे खींचते हैं फरिश्ते जैसे गीले रुई में धागा को सुई में धागे को डालकर खींचा ताकत से, और वो किरास नहीं करता है। ऐसे ही मुजरिम इंसान की रूह को मलकुल मौत खींचते हैं तो पूरे मुजरिम इंसान का पूरा जिस्म करा उठता है, तकलीफ और बेचैनी में रहता है। आपने बहुत से मरने वाले इंसानों को देखा होगा कि ऐसी कराहत और ऐसी उलझन, ऐसी तड़प और हाथों पैर की ऐसी हरकत कि वहाँ कोई बचाने की तदबीर इंसान के काम नहीं आती। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि हमारा यहाँ काम खत्म हो चुका है। आप पैसे देते हो, सारी फैसिलिटी देते हो, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है कि यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है, अब इसका वक्त आ चुका है। तो ऐसे में कोई भी इंसान किसी इंसान को बचा नहीं सकता। जब मलकुल मौत उसकी रूह को निकाल लेते हैं तो फरिश्तों की वो जमात जो ताहद्दे निगाह बैठी होती है, पलक झपकने से पहले अपने कस्टडी में लेती है रूह को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक माहुम मसूहुन, उनके हाथ में टाट की तरह से खुरदुरा, नोकीला, तकलीफ दे कफन होता है, और ऐसी बदबूदार उनके साथ यानी कफन में ऐसा मादा होता है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रोए ज़मीन पर इस तरह की बदबू का एहसास नहीं किया हो गया होगा। और फिर वो अपने हाथों में कराहियत के साथ लेते हैं और उस रूह को लेकर आसमानों की बुलंदी पे जाते हैं। आसमान के फरिश्ते आसमान दुनिया का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। क्यों? इसलिए कि खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, जिसके बारे में खुद मलकुल मौत ने कहा था उखरुजी अय्यतु रूहुल खबीसा कुन्ति फिल जसदिल खबीस, ऐ खबीस रूह तू निकल, क्योंकि खबीस जिस्म में थी। अब तेरे लिए कोई अच्छा मौका नहीं है, तेरे लिए खुशखबरी नहीं है। तो आसमान दुनिया पर जाते हैं फरिश्ते उसको लेकर, फिर उसे ज़मीन में लौटा दिया जाता है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा हत्ता ला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, कुरान के अल्फाज के मुताबिक हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, जिस तरह से सुई के सुराख में ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे ही लोग आसमान की बुलंदी में नहीं जाएंगे। इनकी रूह को फरिश्ते वापस लेकर आते हैं और उन्हें आदाब से दो चार किया जाता है। लेकिन अगर इंसान पाकीज़ा है, रूह उसकी तय्यब और पाकीज़ा है, तो उसकी रूह को निकालने के बारे में और उसकी रूह को ऊपर ले जाने के बारे में हदीस के अल्फाज पे हमें गौर करना चाहिए। मलकुल मौत उस पाकीज़ा रूह को निकालते हुए कहते हैं उखरुजी अय्यतु रूह तय्यबा कुन्ति फिल जसद अतय्यब, ऐ पाकीज़ा रूह तू निकल, क्योंकि तू पाकीज़ा जिस्म में थी। कहाँ निकल? इला रूहिम मिनल इला रूहिम व रैहान, तो पाकीज़ा खुशबू की जानिब, जन्नत की नेमतों की जानिब निकल। ऐसे रब की जानिब निकल जो रब गुस्सा नहीं होगा, तुमसे राज़ी होगा। तो मेरे भाइयों, रब की रज़ामंदी यहाँ से शुरू होती है इंसान के लिए। जब उसकी रूह पाकीज़ा हो, उसका जिस्म तय्यब हो, तो जैसे ही मलकुल मौत उस रूह को अपने हाथ में लेते हैं, पलक झपकने से पहले फरिश्तों की जमात अपने हाथों में उस रूह को लेती है
اور वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं माहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्ना व कफनुम मिन अकफान अल जन्ना, उन फरिश्तों के साथ जन्नत की खुशबू होती है, जन्नत का कफन होता है। आपको चंद पैसे मिले तो आप अपने अजीज को कफन देने के लिए बहुत महंगा कफन खरीदना चाहते हो, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि अगर आप नेक अमल करो, अपनी रूह को पाकीज़ा बना लो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए कफन का इंतजाम करता है। कौन सा कफन? दुनिया का बनाया वो नहीं, जन्नती कफन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए भेजता है। खुशबू अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता है फरिश्तों के जरिए, जिसे मैयत और उसकी रूह महसूस करेगी। तो फरिश्ते उस इंसान के रूह को बशारत देते हुए बेहतरीन सब्ज़ किस्म के बेहतरीन रेशमी कपड़ों में रखते हैं, रेशमी कफन में रखते हैं और अच्छे खुशबू में लेकर ऊपर जाते हैं। तो जब आसमान दुनिया पहुँचते हैं तो वहाँ आसमान दुनिया के जो फरिश्ते हैं इस्तकबाल करते हैं, हाँ तेरा इंतज़ार था, तो वह अपने रब के पास इस तरह से उस रूह को बुलंदी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास फरिश्ते लेकर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हम में से हर इंसान की जिम्मेदारी ये बनती है कि मौत के बारे में जिन बातों को इस्लाम ने पेश किया उन्हें समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। मौत इंसान के लिए यकीनी तौर पे दुनियावी एतबार से थोड़े सदमे की चीज़ है, थोड़े रंजो अलम की चीज़ है, गम की चीज़ है, और इस्लाम ने हमें गम करने का इख्तियार भी दिया है, हक दिया है। और उसकी दो किस्में हैं। पहली बात तो ये कि आम इंसानों की मौत पर आपका कोई अजीज़ मर गया, कोई करीबी मर गया, कोई दोस्त मर गया, तो ऐसे इंसान की मौत पर इस्लाम ने यह कहा कि 3 दिन हम गम में रह सकते हैं। हाँ, दूसरी शक्ल क्या है? बीवी अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 माह 10 दिन वो गम में रह सकती है। लेकिन गम में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हयात को बिगाड़ लो, गिरबान चाक कर लो, बाल को बिखेर लो, दुपट्टे की परवाह न रह जाए और महरिम गैर महरिम की तमीज़ उठ जाए, पर्दा आपका ख़त्म हो जाए, आप आवाज़ निकाल कर रोना शुरू कर दो। चाहे मर्द हो या औरतें, किसी की मौत पर आवाज़ निकाल कर रोना मेरे भाइयों हदीस में ममनू है। अगर आप उन हदीस पर गौर कीजिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मुर्दा पर अहले खाना के रोने की बिना पर आपने कहा था कि ये लोग तो रोते हैं, लेकिन इनके रोने की वजह से मैयत को कब्र में आज़ाब हो रहा है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग रोते हैं, इनके रोने की वजह से मैयत को कब्र में आज़ाब होगा। तो मालूम ये हुआ किसी भी इंसान की मौत पर आवाज़ निकाल कर रोना इस्लाम में ममनू है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के जब इंतकाल हुआ इब्राहिम का, तो सहाबा ने यह समझा कि नबी के बड़े अजीम बेटे हैं, उनकी मौत बहुत बड़ा हादसा है। और अजीब इत्तेफाक ये था, उनकी मौत के दिन ही सूरज ग्रहण हुआ तो सहाबा के दिमाग में बात आई कि नबी के बेटे बड़े अजीम हैं और किसी अजीम की मौत की बुनियाद पर सूरज की रोशनी मात पड़ गई है। आप गौर कीजिए, बेटे की मौत पर यह अकीदा पैदा हुआ। नबी ने फ़ौरन सहाबे किराम को जमा किया और इस बदअकीदगी का इज़ारा किया। आपने कहा इन शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह ला यख्सिफान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही फइदा राअयतुमुहा फसल्लू। सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से 2 अजीम निशानियाँ हैं। किसी की मौत या पैदाइश की बुनियाद पर बेनूर नहीं होते, गहन नहीं लगता इनको। जब तुम इनको गहन आलूद देखो तो नमाज की जानिब सबकत करो, ये नबी ने तालीम दिया। और उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इब्राहिम तुम्हारी मौत पर हमें गम पहुंचता है, लेकिन ज़ुबान से ऐसी बात नहीं कहते जिससे अल्लाह नाराज़ हो। आँखें अश्कबार होती हैं, दिल गमगीन होता है, लेकिन ज़ुबान से ऐसी बात नहीं कहते जो नौहा की शक्ल में, मातम की शक्ल में इंसान को दाखिल कर दे। जैसा कि जाहिलियत के ज़माने में रवाज था, जब किसी की मौत होती थी तो औरतें जमा होकर के बुलंद आवाज़ में रोती थीं, इज्तिमाई तौर पे रोती थी। बल्कि कुछ रोने वालियाँ मशहूर थीं जो किसी की मैयत होती थी वो जाकर के वहाँ रोना शुरू करती थीं, अगरचे उन्हें गम लाहिक हो या ना हो, सदमा हो या ना हो। ऐसी औरतों के बारे में कहा जाता है कि सोग का इजहार करने वाली, मातम करने वाली औरतें अगर अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करती हैं तो यकीनी तौर पे जहन्नम में उनको जलना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मौत पर इंसान को गम में रहने का, सोग में रहने का हक है, लेकिन 3 दिनों से ज़्यादा नहीं। और इन 3 दिनों में भी हमारी हयात आम दिनों से मुख्तलिफ ना हो। ऐसा ना हो कि मैयत का सदमा हमारे नमाज के छूट जाने का सबब बने। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत से यहाँ मैयत होती है, लोग सदमे में हैं और सदमे में होते हुए भी वो नमाज नहीं पढ़ते हैं।
पता चला कि जनाजे की तैयारी में तो रहते हैं, लेकिन पंज वक्ता नमाज जो फ़र्द है उससे गाफिल रहते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मौत को याद कीजिए और मौत के बारे में तस्वुर कीजिए कि हमारी मौत भी आने वाली है, न जाने कब आ जाए, किस हालत में आए, कहाँ आए। इसलिए हमें मौत के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना होगा। और मौत के लिए तैयार रखने का मतलब ये हुआ कि अपना मुहासबा करें, अपने बारे में सोचें कि हमने माजी में क्या किया, मुस्तकबिल में क्या करना है, जो गलत हमने किया उस पर निगाह हमारी हो, क्योंकि मौत अपने आगोश में कब ले ले इसका हमें पता नहीं है। इसीलिए सहाबा कहते थे, जब तुम सुबह कर लो शाम का इंतज़ार मत करो, शाम हो जाए तो सुबह तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं पता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि तुम में से कोई भी इंसान मौत से पहले अपनी वसीयत को तैयार रखे। वसीयत को तैयार रखने का क्या मतलब हुआ? वसीयत को तैयार करने का मतलब ये हुआ, हमारे जो मामलात हैं लोगों से, लेन देन है, कर्ज है, मामला है, उन तमाम चीज़ों को लिख कर रखो। पता नहीं कब मौत आ जाए, तो हमारे मरने के बाद जनाजे में ऐलान की नौबत ना आए कि वर्षा की जानिब से ऐलान किया जाए कि जनाब मैयत का अगर किसी के ज़िम्मे कोई बकाया है, कोई मामला है, तो अल्लाह के वास्ते या तो माफ़ कर दें या वर्षा से ले लें। इस वक्त के आने से पहले अपनी वसीयतों को तैयार रखो। वसीयतों को तैयार करने का मतलब ये हुआ, लेन देन अगर आप करते हैं तो उसको लिख कर रखिए, लोगों के हुकूक को अदा कीजिए और लोगों के मामलात को साफ रखिए। मुसलमान अगर मुश्किल से नमाज कहीं पढ़ने लगता है तो मुसलमानों के तामुल को, मामलात को देखकर बड़ी शर्म आती है, बड़ी घिन महसूस होती है कि मुसलमानों के मामलात गंदे हैं, लोगों के साथ मामलात में मुसलमानों के यहाँ कमी है। जबकि इस्लाम ने हम मुसलमानों को मामलात के बारे में इतना शिद्दत से उसका एहतमाम करने का हुक्म दिया, किसी दीन में उसकी तालीमात नहीं मिलती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वसीयत को लिखने का मतलब ये हुआ कि आपने किसी से कुछ लिया है, किसी को कुछ दिया है, ये सारी चीज़ें आपकी डायरी में महफूज होनी चाहिए, ताकि किसी हादसे पर आपके वरसा को आपके बारे में परेशान होना ना पड़े। अगर इस सिलसिले में गुफ्तगू की जाए तो शायद बात लंबी हो जाएगी, मैं बात को तूल नहीं देना चाहता। मैं खुलासे के तौर पर कहना चाहूँगा कि मौत को हमेशा याद कीजिए, और मौत को याद करने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह को याद कीजिए, उसके आदाब से डरिए और उसकी जन्नत को याद कीजिए, जन्नत का शौक़ हो और जहन्नम का डर हो। और ये बात उस वक्त होगी जब हम इस दुनिया में जीते जी अल्लाह रब्बुल आलमीन को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जो हुकूक हैं उनके हवाले कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ हम पर क्या है? इबादत से वसी की जाए। रसूल का हक़ क्या है? इत्तिबा से रसूल की जाए। ये दोनों बुनियादें अगर हमारी ज़िंदगी में सही हैं तो बाकी चीज़ें सही हैं, और अगर ये दोनों बुनियादें हमारी ज़िंदगी में सही नहीं मेरे भाइयों, तो फिर हमारी ज़िंदगी की मेहनत, हमारी ज़िंदगी का अमल अकारत हमारे मुँह पे मार दिया जाएगा। इसलिए दीन का खुलासा या मौत का खुलासा ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए और इत्तिबा और पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन पेश करदा बातों के मुताबिक अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।